Hello, myself Himlata, your mathematics teacher. The today's topic of my video is large sample test. As we have previously discussed various things on test of significance, null hypothesis, level of significance, and many more things which are related to the sampling. Now, today we will start our actual topic, large sample test. In the next videos, we discuss two types of samples. One is large sample and other is small sample. What is large sample? A sample in which the value of n is greater than or equal to 30. We will consider it as a large sample, and in which the value of n means the number of items in the sample, means sample size. If it is less than or equal to 30, then we will take it as a small sample. What is large sample? The value of a statistic obtained from the sample can be taken as an estimate of the population parameter, and the normal distribution is used for the testing. But in the small sample, the value of a statistic obtained from the sample cannot be taken as an estimate of the population parameter, a very important thing. And the sampling distribution like T, F, etc. are used for the testing. For the large sample, we generally use Z-test, and for the small sample, we generally use the T-test or the F-test. In this video, we discuss large sample test. In that, we discuss test of significance of mean, test of significance of the difference of two mean, and test of significance between the two standard deviations. And in the T-test, we discuss the test of significance of the mean, test of significance of the difference of two mean, and pair T-test. These are some of the parameters which we used in the large sample test. That is, the parameter for the population we use for the mean is mu, for the standard deviation sigma, and for the variance sigma square. Whereas for the sample, we use symbol of x bar for the mean, small s for the standard deviation, and for the variance s square. Large sample Z-test. As we previously discussed, that large sample test is for those samples in which the value of n is generally greater than 30. So what are the various steps involved in the testing hypothesis? First, we announce a null and the alternate hypothesis for the given problem. Then, finding out the difference between the observed value and the value taken in the null hypothesis. Calculate standard error of the statistic. स्टैंडर्ड एरर हमने प्रीवियस जो मैंने वीडियोस आपको दिखाई थी उनमें भी स्टैंडर्ड एरर के बारे में मैंने जिक्र किया था, और वहां पर मैंने एक टेबल भी आपको शो किया था जिसमें डिफरेंट फॉर मीन, फॉर वेरिएंसेस, फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स, उनके लिए स्टैंडर्ड एरर्स क्या रहेंगी, ये भी वहां पर टेबल आपको बताया था. इस वीडियो में भी मैं आपको वो दोबारा से बताऊंगी. देन कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z, दिस इज द मेन थिंग. z हमने जो कैलकुलेट करना है, जिसको हमने टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, दैट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा पॉपुलेशन का मीन में और आपके सैंपल के मीन में, या जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड देन इसको हम कंपेयर करेंगे एट अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर हमारी ये z की वैल्यू फॉर द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आती है तो हम h0 को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे. और अगर यही z की वैल्यू हमारे
जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी z की वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम h0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. सो सिंपल. सो दीज आर द स्टैंडर्ड एरर्स for the different testing. That is, if we are considering mean only, difference of the means of the population and the sample, for that standard error is sigma over root n. If we are considering the difference of the two means of the two samples, means x1 bar minus x2 bar, for that standard error is sigma sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 under root. And if we are considering the sample proportion P, means we are discussing the proportion of the population and the sample. For that standard error is P into Q by N under root. And for the difference between two proportions, it is P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2 under root. And these are the very important values, critical values of the level of significance. ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. जनरली हम इन्हीं 3 वैल्यूज पर आपका z की वैल्यू को कंपेयर करते हैं. फॉर द टू टेल टेस्ट, एट द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द वैल्यू ऑफ z अल्फा इज 2.58. एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस इज 1.96. and for the 10% level of significance it is 1.645. and for the one tail test, at the 1% level of significance the value of z alpha is 2.33. at 5% level of significance 1.645. and for the 10% level of significance this is 1.282. ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. इन वैल्यूज के साथ जो हम z की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे उसको इन वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है. ठीक है. अगर वो जो कैलकुलेट की गई z की वैल्यू इनमें से किसी एक वैल्यू से कम आती है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लेना है. अगर कंप्यूट की गई z की वैल्यू इन वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हमने h0 को रिजेक्ट कर देना है. सो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन. ये हमारा पहला टॉपिक शुरू हो जाता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन. क्या करना है हमने इसमें? सो देयर इज अ रैंडम सैंपल जिसका साइज n है, दैट इज टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन. इसमें सैंपल का मीन क्या है? x बार. पॉपुलेशन का मीन क्या है? म्यू. and we are testing the hypothesis that population mean is mu naught, that is h naught. mu is equals to mu naught. हमने यहाँ पर null hypothesis क्या माना है कि population के मीन में और सैंपल के मीन में कोई भी significant difference नहीं है. तो हमारा h1 क्या है? mu is not equals to mu naught. means alternate hypothesis क्या है? obviously उसका उल्टा. so mu is not equals to mu naught. and this is called the one-tailed test. ओके. मैंने पिछली स्लाइड में आपको टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट ये दो चीजें लिखी हैं. व्हाट इज दैट? वन टेल टेस्ट क्या है? अगर हम अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सिंपली लिखते हैं म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, दैट रिप्रेजेंट द वन टेल टेस्ट. और अगर हम अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इस तरह से लिखते हैं कि दैट म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट या म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, देन दैट विल बी योर टू टेल टेस्ट. इट इज अप टू यू ओनली कि आप टू टेल टेस्ट लेना चाहते हो या वन टेल टेस्ट लेना चाहते हो. ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. वैसे जनरली म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट से ही हमारा काम चल जाता है. तो मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगी अगर कहीं पर आया कि यहाँ पर वन टेल्ड ही लेना है या टू टेल्ड से ही हमारा काम होगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज द एक्स बार माइनस म्यू नॉट. एक्स बार क्या है? हमारा सैंपल का मीन. म्यू नॉट क्या है? हमारा पॉपुलेशन का मीन. और स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर क्या है? सिग्मा बाय रूट है. और z जो हमने कैलकुलेट करनी है दैट वैल्यू इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड एरर. और ध्यान दीजिएगा ये डिफरेंस क्या है? मॉड वैल्यू ले रहे हैं, इससे नहीं तो आपके क्वेश्चन का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. तो हमने सिर्फ मॉड वैल्यू पर ही कंसिडरेशन देनी है.
सो हियर इज योर क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही थी. द क्वेश्चन इज द मीन वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज 64 ग्राम. सैंपल साइज कितना 100, सो दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द लार्ज सैंपल. The standard deviation of the weight distribution of the population is 3 grams. Test the statement that mean weight of the population is 67 grams at 5% level of significance. तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि 5% level of significance पर आपने difference of mean को चेक करना है. Also set up 99% confidence limit of the mean weight of the population. क्या दिया है कि एक सैंपल है जिसका साइज 100 है, उसमें मीन वेट जो है दैट इज 64 ग्राम, यानी सैंपल का जो मीन है दैट इज 64 ग्राम, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 3 ग्राम्स, यानी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया है, 3 दिया है. एन कितना है, 100 है, एक्स बार 64, सिग्मा 3. देन टेस्ट द स्टेटमेंट दैट मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन, मीन वेट पॉपुलेशन का कितना दिया है, 67 ग्राम, मीन्स म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 67, और चेक करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो सबसे पहला काम हमने एच नॉट नल हाइपोथेसिस ड्रॉ करना है. देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि टेस्ट कीजिए स्टेटमेंट दैट मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 67 ग्राम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो एच नॉट हम जनरली क्या लेते हैं, जो कि न्यूट्रल स्टेटमेंट हो. तो हमने क्या ले लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन मीन, कि पॉपुलेशन की मीन में और सैंपल के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और जनरली हम अपना एच नॉट यही लेते हैं. देन म्यू इक्वल्स टू कितना दिया, 67. तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा, लेट H1 इज इक्वल्स टू म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 67, मीन्स उन्होंने क्या ले लिया अपना टू टेल टेस्ट. सो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 67, ये हो गया आपका टू टेल टेस्ट. देन यहाँ पर हाँ ध्यान दीजिए, आप वन टेल्ड भी ले सकते थे, मीन्स यू कैन टेक म्यू इज ग्रेटर देन 67 और यू कैन टेक म्यू इज लेस देन 67. ठीक है जी, इट्स अप टू यू ओनली. नाउ टेस्ट द स्टैटिस्टिक. अब यहाँ पर हम अंडर द गिवन एच नॉट जेड की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे. जेड कितना है हमारा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाय रूट एन. ओके, नाउ एक्स बार कितना है, 64, म्यू है 67, सिग्मा बाय रूट एन. हमने कहा था कि जब हमने पॉपुलेशन और सैंपल के मीन को कंपेयर करना है, उसका डिफरेंस देखना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय रूट एन. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. सिग्मा 3 है, एन 100 है, उसका रूट लिया, तो इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आपकी आ गई -10, बट हमने क्या लेनी है, मॉड वैल्यू, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी. तो जेड मॉड इज 10. अब क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. नाउ चेक योर टू टेल टेस्ट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, हाँ जी, दैट इज 1.96. सो this 10 is obviously greater than 1.96 at 5% level of significance. ठीक है जी, so z mod is greater than 1.96. The significance value of z at 5% level of significance h naught is rejected. क्या बताया था मैंने कि जो हम z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, अगर वो हमारी z अल्फा यहाँ पर कितनी है 1.96, उससे ज्यादा आती है तो हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर उससे कम आती है तो एक्सेप्ट कर लेंगे. यहाँ पर 10 1.96 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स हम h नॉट को रिजेक्ट कर देंगे. और h नॉट था क्या, h नॉट था, हमने माना कि पॉपुलेशन और सैंपल के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. तो अगर ये रिजेक्ट हो गया तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकला कि हाँ जी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल मीन. ओके, क्लियर. आगे उन्होंने पूछा है कि इसी को सेम को 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर भी चेक कर लीजिए.
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आप क्या करेंगे, to find the 99% confidence level, it is given by x bar प्लस माइनस 2.58 सिग्मा बाय रूट एन, ये भी आपका फॉर्मूला है। उसमें डाल देंगे ये वैल्यू, एक्स बार कितना है 64 प्लस 2.58 सिग्मा बाय रूट एन, जो कि ये आया। सो दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर 64.774। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। इन द few days I will put the assignment questions so that you can practice it at home. In the next video I will discuss the other two test of significance for the last time. Till then, thank you.